Shanti. Om Shanti, Vinesh Bhai. Welcome, welcome, hearty welcome, 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 hearty welcome, 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 hearty welcome, 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 hearty welcome. Welcome, hearty welcome, Luisa. Thank you. I'm very honored to be here with you all. लुइसा बहन का बहुत बहुत स्वागत है और साथ साथ वैशाली बहन का भी बहुत 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 दोनों का स्वागत है। एक एडिनबर्ग से तो एक कैलिफोर्निया से और दोनों आज मिल करके हमें अपना अनुभव सुनाएंगे, अर्थात लुइसा बहन अपना अनुभव शेयर करेगी तो वैशाली बहन उसे ट्रांसलेट करेगी, जैसे आगे भी उन्होंने बहुत अच्छा ट्रांसलेशन दिया था। So today we are good enough fortunate to have Sister Luisa's experience. So I would like to introduce Dr. Jayan Bhai. वैशाली बहन आप इंट्रोड्यूस करें डॉक्टर साहब को। वैशाली बहन। Om Shanti, Sister Lucia, we have Dr. Jayan Bhai with us, and it's my honor to introduce you with Jayan Bhai and Champa Ben, and they are being blessed and have been in the company of Brahma Baba for a long period of time, and it's a fortune to get sustained by such pure soul in the world, you know. And they have been running center in Baroda for a long time, and that's also has been with the Srimad of Brahma Baba. And Dr. Jayan, what I have observed, I can speak from my experience, that he has a very refined intellect, accommodating nature, and very sharp. And he is a very detail oriented. That's what is my experience, because what I see, that's only I can explain about him, and he's just a wonderful soul. So it's my honor to introduce you with Dr. Jayan Bhai. Thank you, Sister Lucia. I'm honored too. Thank you. That's my. So she's saying thank you. वो बहन thank you कह रहे हैं कि ये मेरा सौभाग्य है कि मैं डॉक्टर जैन भाई से introduce हो रही हूँ. And Sister Lucia, myself, I'm Sister Vaishali, and I have been practicing this for this Raj Yoga for 25 plus years, and it's my honor to introduce yourself, your experience with the divine soul of Karelibag family. Thank you and welcome. Well, I'm very happy to be here to have this opportunity to share. I'm sorry I can't speak in Hindi. I can understand, but my speaking is not very fluent. It would be very difficult and I think a bit painful for you. So if you don't mind, I'll speak in English. So बहन कहते हैं कि मेरी हिंदी मुझे बिल्कुल आती नहीं है. अगर मैं बोलने की कोशिश भी करूंगी तो आप लोगों के लिए बहुत दर्दनाक होगा. So इसलिए मैं ये कोशिश भी नहीं कर रही हूँ और मेरा बहुत बहुत सौभाग्य है कि ये आज मुझे मौका मिला है अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए. So my name is Louisa Gupta. I married an Indian from New Delhi and we went to live there in the 70s. So मेरा नाम लूजिया गुप्ता है. मैंने शादी की है जो वो इंडियन थे जो दिल्ली से थे. What's the name of your युगल बहन? Vinod Gupta, but he left the body many years ago. तो उनके युगल का नाम विनोद गुप्ता है जो न्यू दिल्ली से हैं और 1970s में मैं इंडिया में मूव हो गई थी. मैं वहाँ रहती थी. Yes. So I'll tell you a little bit about my background, that I'm from Scotland, UK. मैं आपको अपने बारे में थोड़ा कुछ बताती हूँ कि मैं यूके से हूँ, स्कॉटलैंड से हूँ.
And from early childhood, I was very much interested in God and in the Christian religion because I was brought up a Christian. So बचपन से ही मुझे परमात्मा में बहुत बहुत रुचि थी और मैं क्रिश्चियन रिलीजन से हूँ, तो मैं क्रिश्चियन रिलीजन्स के बारे में बहुत पढ़ने की और उसके बारे में बहुत इंटरेस्टेड थी. I knew God existed, but how I knew, I didn't know. I just knew that God was there. मुझे पता था कि परमात्मा का अस्तित्व है, लेकिन वो कहाँ है वो मुझे नहीं पता था, लेकिन मुझे ये निश्चय था कि भगवान है. And I started to read the Bible when I was about 8 years old. मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया जब मैं सिर्फ 8 साल की थी. But I didn't understand much, although I liked many passages from the New Testament which were about Jesus. मुझे कुछ छोटी थी, मुझे कुछ ज्यादा समझ में नहीं आता था, लेकिन जो न्यू टेस्टामेंट्स के जो जीसस के बारे में, जो जीसस यीशु क्रिस्ट के बारे में जो लिखा हुआ था, वो मुझे बहुत अच्छा लगता था. I was brought up in central Scotland. If you know where that is, that's the northern part of UK, which has got very scenic mountains, and it's very scenic with lakes and woodland. तो जहाँ पर मैं सेंट्रल स्कॉटलैंड से हूँ, अगर आपको पता ना हो तो वो नॉर्दर्न साइड पे आता है और बहुत ही सुंदर पहाड़ियों से घिरा हुआ ये देश है और बहुत सुंदर देश है. And in those days, this was in the 50s, there was, everyone went to church, everyone was very religious. तो ये 1950 की बात है. 1950 में उस वक्त सब बहुत रिलीजियस हुआ करते थे और सभी रोज चर्च में जाया करते थे. And we lived there for about 8 years, and because my father was a teacher, we moved to the islands off the west coast of Scotland. तो क्योंकि मेरे पिताजी टीचर थे, तो वहां पर हम 8 साल रहे और स्कॉटलैंड के जो है फिर you moved to the island of the Hebrides. Yeah. The Hebrides. Yeah, so वहां पर स्कॉटलैंड क्या है, मैं गई हुई, I have been to Scotland, so I can relate to what you're so बहुत छोटे छोटे आइलैंड्स हैं. तो वहां पर जो है उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी जो थे तो टीचर थे, तो 8 साल रहने के बाद मैं दूसरे आइलैंड पे हम लोग मूव हो गए. And in these islands, they spoke a different language called Gaelic, which was different from English. तो उस टापू के ऊपर, उस आइलैंड के ऊपर वो लोग दूसरी भाषा बोलते थे और वो भाषा का नाम था गैलिश. गैलिश, am I pronouncing correct? Galish? That's right. Yeah. And you may have heard of the Celtic tradition, Celtic. the Celtic peoples. So आप लोगों ने सुना होगा कि एक संस्कृति है जिसे कैल्टेक कहते हैं. अगर आपको नहीं पता हो ना तो फिर बाद में गूगल कर लेना. And their traditions actually have a deep connection with the ancient Bharat, the traditions of Bharat. तो वो कैल्टिक जो संस्कृति है, उनका कनेक्शन है, उनका जुड़ान है, वो जो है वो भारतीय संस्कृति के साथ बहुत जुड़ी हुई है. In the stories, they would talk of the land of the ever young, the immortals. तो वहाँ पर जो कहानियां बताई जाती है ना, कि प्राचीन कहानियां बताई जाती है, तो वहाँ पर प्राचीन कहानियां जो बताई जाती है, तो वहाँ पर कहा जाता था कि एक ऐसी जगह है, ऐसी धरती है जो अविनाशियों की धरती कहा जाता है. Yes. Now, my mother's family had a very close connection with India. मेरी माता जी जो है, उनके परिवार वालों का बहुत गहरा संबंध भारतीयों के साथ था. For several generations, they were part of what was known as the British Raj. मेरे माता जी का जो परिवार था ना, वो ब्रिटिश राज का वो हिस्सा थे.
तो ब्रिटिश Yes. राज का जब हिस्सा थे तो जरूर उनका कनेक्शन जरूर भारत के साथ ज्यादा जुड़ा हुआ था। So my grandfather, that is my Nanaji and Prananaji, they all lived in India. And so I felt that there was a very deep connection with India from my early childhood. तो मेरे नाना जी जो है उन्होंने बहुत समय भारत में गुजारा था, तो मुझे ऐसा इसी वजह से मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरा बहुत गहरा रिश्ता है भारत के साथ। But I never knew that I would end up living in India. लेकिन मुझे ये एहसास कभी नहीं हुआ कि मैं इवेंचुअली मैं भारत में रहना शुरू कर दूंगी। Yes. But drama arranged for me to go to university in England, which was where I met my husband. ड्रामा अनुसार मैं इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी में पढ़ने गई और वहां पर मुझे अपने युगल मिले। Now I was a Christian and I didn't believe in rebirth. और मैं क्रिश्चियन फिलोसॉफी में मानती थी, तो क्रिश्चियन फिलोसॉफी में कहा जाता है कि वहां पर पुनर्जन्म की बात नहीं होती है। क्रिश्चियन लोग जो है ना पुनर्जन्म में नहीं मानते हैं, तो मैं नहीं मानती थी पुनर्जन्म में भी। Yes. And I was coming from a remote part in Scotland to live in England, and I felt a foreigner when I came to England. मैं बहुत ही छोटे कस्बे से आती हूँ, स्कॉटलैंड में कोई छोटा कस्बा है, छोटे गांव से आ रही थी, और जब मैं खुद स्कॉटलैंड से इंग्लैंड गई तो मुझे ऐसा लगा कि ये मैं किसी दूसरी दुनिया में आई हूँ, मैं फॉरेनर हूँ इंग्लैंड में। So automatically I drifted towards the other foreigners. और इसी वजह से ऑटोमेटिकली, क्योंकि मैं अपने आप को फॉरेनर समझती थी, तो जो दूसरे देशों से आए थे वहां पर पढ़ने के लिए, उनके साथ मेरा कनेक्शन, मेरा संबंध बहुत इजीली जुड़ गया, तो मैं उनके साथ रहना ज्यादा पसंद करती थी। And the boy who was to be my husband, I felt a very close connection, though I didn't understand why. और जिसके साथ मैंने, जो वो इंसान था जिसके साथ मैंने शादी की, उसके साथ मुझे पता नहीं क्यों इतना गहरा रिश्ता अनुभव होता था, इतना गहरा संबंध अनुभव होता था, और मुझे पता नहीं क्यों होता था। And I felt I knew him, but I didn't know how I could possibly know him. मुझे हमेशा ये एहसास होता था कि मैं इसे जानती हूँ, लेकिन ये नहीं समझ में आता था कि मैं कैसे जानती हूँ। So eventually, after some years, we got married. आखिर में थोड़े समय के बाद, थोड़े सालों के बाद हमने शादी की। And then went to America for a couple of years and then to India. फिर कुछ समय, शादी के बाद कुछ समय के लिए हम अमेरिका गए और उसके बाद हम भारत गए। But I always felt there was something missing in my life. लेकिन हमेशा मुझे ये महसूस हुआ है कि मुझे होता था कि मेरे में मैं कुछ ढूंढ रही हूँ, मुझे ऐसा लगता था कि मेरे में कुछ खालीपन है। Yes. And I shared a room at university with a girl who was an atheist. Okay. और जब मैं यूनिवर्सिटी में थी तो मैं जिस लड़की के साथ अपना कमरा शेयर कर रही थी, वो जो थी वो नास्तिक थी। Yeah. So neither she and her whole family just didn't believe in God, and they told me it's my imagination. God doesn't exist. तो उसके जो परिवार और वो थे, वो उनकी मान्यता थी कि भगवान जैसा कोई अस्तित्व है ही नहीं। तो वो मुझे कहते थे कि तुम्हारे ये सारा जो भगवान जो है, कंसेप्ट जो है, वो तुम्हारे दिमाग का तुत है, ये तुम्हारी कल्पनाएं हैं। So we went to church to find out, because God's supposed to be in church. तो मैं चर्च में गई और कि मुझे ढूंढना था, तो मैं, क्योंकि भगवान तो चर्च में होते हैं, तो मैं ये सवाल का जवाब लेने के लिए चर्च में गई। So throughout the whole service, there was nothing, and I felt, well, maybe God doesn't exist. तो पूरा जो वहां पे सर्विस बना, क्या होता है कि जहां पर जब जाते हैं ना, चर्च में जाते हैं, तो वो लोग सब समझाते हैं, है ना, तो वो बोलते रहते हैं, जैसे प्रवचन देते हैं।
तो वो जो पूरा प्रवचन था उसके अंदर से मुझे कोई एहसास ही नहीं हुआ कि भगवान जैसी कोई चीज है, तो फिर मुझे भी ऐसा लगा कि नहीं, भगवान जैसी कोई चीज नहीं होगी। But then when they were playing the last hymn, all of a sudden, so it seemed to me that the roof opened up and bright light shone in. Okay. फिर जब वो उसका जब हमारे में हिम मतलब हमारे में जैसे मंत्र गाते हैं ना, तो उनके अंदर जो है वो हिम गाते हैं क्रिश्चियनिटी में। तो वो जब लास्ट मंत्र चल रहा था, आई एम जस्ट ट्रांसलेटिंग हिम इनटू यू नो एनालॉजी। सो वो जब लास्ट जो उनका जो मंत्र चल रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि छत खुल गई और छत के अंदर से लाइट आना शुरू हुआ। Is that correct, right? It was such bright light and there was so much love. I felt rays of love and light coming towards me. और वो जैसे कि छत खुल गई, ऊपर से एक प्रकाश आना शुरू हुआ और प्रकाश इतना प्रभावशाली था, इतना चमकीला था और इतना उस प्रकाश में प्यार था, मुझे लगा कि मैं सारे प्यार के अंदर एक्सक्यूज मी, तो सारे प्यार में जैसे मुझे परमात्मा के प्यार की बहुत सुंदर अनुभूति हुई। So I said to my friend afterwards, you see, God does exist. Didn't you feel that in the last hymn, all that light and love? तो मैंने अपनी दोस्त को बोला, भगवान तो अस्तित्व कर में है, क्या तुम्हें वो जब लास्ट मंत्र जो चल रहा था, आखिरी मंत्र के वक्त तुम्हें परमात्मा की शक्ति का, उसके प्रकाश का, उसके प्यार का अनुभव नहीं हुआ? And she said, no, what are you talking about? और उसने कहा, नहीं, क्या बात कर रही हो तुम, क्या बात कर रही हो, मुझे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है। Because she was not looking for God, I was looking for God. क्यों? उसे नहीं क्यों समझ में आया? क्योंकि वो भगवान को ढूंढ नहीं रही थी, मैं तो भगवान को ढूंढ रही थी। And so that convinced me, okay, God does exist, but how and where, of course, I did not know. हाँ, उस बात ने मुझे ये बात का निश्चय जरूर करा दिया कि भगवान जरूर अस्तित्व, परमात्मा का अस्तित्व है, कहाँ है, कैसे है, मैं नहीं जानती। Yes. So we lived, that is, my husband and I, we lived in America, in Boston, for 2 years. मैं और मेरे पति बॉस्टन में, अमेरिका में, बॉस्टन जो ईस्ट कोस्ट में है, वहां पर 2 साल तक रहे। Yeah, he was an engineer. वो इंजीनियर थे। Yeah, and I also worked in computers in the early days. They were very early days. I had a job with computers. और मैं जो है वो कंप्यूटर की दुनिया में काम करती थी। वो बहुत you know, it must be like around 75 you are talking about? Should be 75. That was, I'm talking about 1970, 69, Yeah. 70. Yeah. When just computers was just. The computers were like a cupboard. Yeah, it was a cupboard, right? तो ये उस समय की बात है जब कंप्यूटर जो हुआ होता है ना, जो आज हमारा लैपटॉप है, वो कबर्ड की साइज का होते थे। वो जो हमारे घर में नहीं होते हैं, वो पतरे के इतने बड़े बड़े जो लोखंड के कबाट होते हैं। तो बाबा कहते, वो बहन कहती है, उस वक्त मैं कंप्यूटर की वर्ल्ड में उस वक्त काम करती थी जब उस साइज के कंप्यूटर हुआ करते थे। And after some time, I was the one who was interested in coming to India. My husband was happy to stay in America, but I was the one who felt a pull to go to India. मेरे पति भारतीय होने के बावजूद उनको तो अमेरिका में ही रहना था, लेकिन मुझे ऐसा कोई खींच हो रही थी, मुझे भारत खींच रहा था और मैंने इंसिस्ट किया, मैंने उनको कहा कि हमें भारत जाना है। उनको तो नहीं आना था, मुझे भारत जाना था। And so we made arrangements to take a car to drive overland to Iraq, because you could in those days, and then take a boat to Mumbai. So you went from, let me understand, you went from America to Iraq. So we went to America back to UK, okay. And then, took a back to UK first. Okay. So फिर क्या हुआ कि वो जब बॉस्टन में अमेरिका में थे ना, तो अमेरिका से पहले वो लंदन गए, मतलब यूके गए। तो यूके से क्या है, बाय रोड, अभी तो पता है ना कि लंदन से और यूके से कई लोग जो है बाय रोड भारत जाते हैं।
लेकिन वो कहते हैं कि हम लोग जो है यूके से ईरान तक बाय रोड गए, ईरान और इराक, Iraq. इराक, In, तो yes. यूके से इराक तक बाय रोड गए, बाय कार गए, और वहां से हमने बोट ली और वहां से फिर हम भारत आए। Yes. And we had university friends in Belgium, in Germany, in Iraq, one in Mosul in the central Iraq and one in Basra at the port. We तो had मेरे friends there. हमारे जो दोस्त थे, क्योंकि जब आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हो तो बहुत अलग अलग जगह से स्टूडेंट्स आते हैं ना, तो वो कहते हैं कि अलग अलग जगह से जो स्टूडेंट्स आए थे उसमें बेल्जियम के थे, जर्मनी के थे, सेंट्रल इराक के थे, और इराक के पास जो पोर्ट है वहां पर थे। तो हमारे दोस्त सभी जगह पर बिखरे हुए थे, हमारे सब जगह पर फ्रेंड्स थे। Yes. So we arranged to stay with them en route. तो उन सब के घर पर हम जाकर रुकते थे जब हम इस सफर में आगे बढ़ रहे थे। Because we had to get the boat from Basra to Mumbai before it got too hot. So we arranged to reach India in March in 1973. तो 1973 में हमें जब बॉम्बे जाना था तो हमारा ये उद्देश्य था कि जब बहुत गर्मी हो, गर्मी की सीजन के पहले जो है बहुत गर्मी हो जाए उसके पहले हमें बॉम्बे पहुंच जाना है। तो 1973 में हमने मार्च के महीने में जो है हम बॉम्बे पहुंच गए। You reached Bombay in 1973 in March, Yeah, correct? reached. And there Right. it was quite a business getting through all the customs and getting everything ready to go up to everything cleared to go up to Delhi. और फिर वहां पर हम जब क्योंकि उस वक्त बहुत पेचीदे हुआ करते थे जो रूल्स रेगुलेशन है, कस्टम के रूल रेगुलेशन है, हमें बहुत दिक्कतें आई, लेकिन आखिर में हम दिल्ली पहुंच गए। Yes. So when I first landed in India, I felt a tremendous excitement. I couldn't explain it. It was a very deep feeling that this is the ancient land that belongs to me. मैं शब्दों में ये आपको बयान नहीं कर सकती हूँ कि कितनी मुझे खुशी थी, ना, एक अंदरूनी इतनी खुशी थी कि ये इतनी पुरातत्व, पुरानी दुनिया है, पुरानी जगह है, और इस जगह से मैं बिलोंग करती हूँ, माना ये मेरा घर है। वैसी भावना मुझे हुई जब मैं इंडिया में मैं पहली बार आई। Yes. So then we settled back in Delhi, and it was near Connaught Place, you know, the central part of the city, but it was also near to Karol Bagh, where Panda Bhavan is. तो हम जब आए तो हम जब दिल्ली में आए तो हम कनॉट प्लेस में गए। तो कनॉट प्लेस जो है वो बहुत ही क्राउडेड एरिया है, इट्स अ मेन सेंट्रल पार्ट ऑफ द दिल्ली है। तो वो जो है वो करोल बाग से भी करीब है, और करोल बाग में ही हम सभी को पता है कि जहाँ पर गुलजार दादी रहती थी, तो वो पांडव भवन जो है वो करोल बाग में है। तो वो काफी पास में था जहाँ पर वो लोग रहते थे दिल्ली में। But of course, I didn't know anything about Brahma Kumaris then. लेकिन मुझे ब्रह्मा कुमारीज के बारे में उस वक्त कुछ पता नहीं था। So I stayed. It was a joint family in which I lived with my mother-in-law, father-in-law, 2 brothers-in-law, and sister-in-law. वाओ। सो वो जॉइंट फैमिली था। जब वो वहां पर दिल्ली में आए तो उनके सास ससुर थे, उनके 2 देर जेठ, और उनके एंड 1 सिस्टर इन लॉ, नो सिस्टर इन लॉ, Younger sister-in-law. हाँ, और एक ननंद थी। तो ये 3 जो थे वो उनके पति के भाई बहन थे और उनके माता पिता। ये जॉइंट फैमिली में मैं रहती थी। Yes. And we were the only ones who were married, and I had a small son by that time. और हम ही जो थे ये जो सब उनके भाई बहन थे ना, उसमें सिर्फ इन्हीं की शादी हुई थी। और जब मैं वहां तक पहुंची तब तक हमारे पास हमारा खुद का बेटा था, हमें एक बेटा था। It's a middle-class family. My father-in-law had been the chief engineer of Delhi. तो वो मिडिल क्लास फैमिली थी, और दिल्ली में जो मेरे ससुर जो थे वो चीफ इंजीनियर थे।
But there were still many things that I had to get used to. लेकिन काफी बातें अभी आप समझ सकते हैं कि यूके से जब कोई बहन वहां जाएगी और वो भी भारतीय परिवार में जाएगी तो बहुत एडजस्टमेंट करनी पड़ती है ना, तो मुझे सब बातों से को मैं एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम, मुझे पता था कि मुझे कई बातों से एडजस्ट होना है. Yeah, coming from America, and you know what America is even in those days, everything available. या और जब आप अमेरिका से जाते हो और सब, उस वक्त भी अमेरिका वैसा ही था कि यहाँ पर सुख सुविधाएं की तो कोई कमी नहीं है, सब कुछ हमें चाहिए वो सब कुछ हमारे लिए हमें इजीली मिल जाता है. And here the water would only come in the morning or in the evening, and my mother-in-law had kept pots of water and we cooked on the floor. तो वहां पर तो क्या होता था, सुबह कभी पानी आएगा, शाम को पानी आएगा, मेरी सास जो होती थी वो सब मटके भर के रखती थी और फिर हम लोग जमीन पर बैठ के हम वो मटकों में से पानी लेके खाना बनाते थे. And not only that, it was a time when the dollar had fallen. और उस टाइम जो है ना, तो उस टाइम डॉलर की वैल्यू जो है ना वो गिर चुकी थी. So we landed up in India with practically nothing and one sister-in-law to get married. तो जब हम भारत में आए तो हमारे पास कुछ नहीं था प्रैक्टिकली, और एक ननद जी थी, उसकी शादी करानी थी. And I got on very well with my brothers-in-law and sister-in-law. और मेरी बहुत अच्छे से मेरी देरानी, मतलब मेरे जो देर और जेठ थे, और so you have two elder brother, your husband? No, my husband was the eldest. Actually, my father-in-law had married again. So the two brothers-in-law and sister-in-law, they were stepchildren. Okay. तो उनके जो ससुर थे उन्होंने दूसरी शादी की थी, और ये जो दो बच्चे थे, मतलब जो उनके जो देर थे वो दूसरी शादी से थे, वो तो उनके सौतेले थे. तो दो छोटे दियर और एक ननन, तो इन सब के साथ मेरी बहुत अच्छी बनती थी. But it was my father-in-law that I had quite a strong account with. तो मेरे ससुर के साथ जो है वो मेरा काफी पेचीदा रिश्ता था. You know, what's mine is mine, but what's yours is mine also. उनकी ये मान्यता थी कि जो मेरा है वो मेरा है, लेकिन जो तेरा है वो भी मेरा ही है. But my husband was a very good man. लेकिन मेरे पति जो थे ना वो बहुत अच्छे इंसान थे. And he because of various contacts, he got a job with the government. क्योंकि उनके बहुत अच्छे नेटवर्क थे, कनेक्शन बहुत अच्छा था, तो उनको गवर्नमेंट में नौकरी मिल गई. But then there was the emergency and everything got suspended. You know, Indira Gandhi and Sanjay Gandhi and all that drama. So 80s के अंदर जब वो इमरजेंसी हुई थी, आप लोगों में से तो कई होंगे उसमें उस वक्त, तो उस वक्त जो है वो संजय गांधी और इंदिरा गांधी का जब वो हुआ था, तो उसके बाद जो थी वो सारी पोजीशंस जो होती है गवर्नमेंट की पोजीशन थी ना, वो सस्पेंड हो गई थी, वो रद्द हो गई थी. Yes. And so then he got a job in a private company as a consultant. तो उनको जो है वो प्राइवेट कंपनी के अंदर एज अ कंसल्टेंट की उसे नौकरी मिली. Yes. Now my father-in-law, he liked to invite various gurus to come to the house. तो मेरे जो ससुर थे ना, वो अलग-अलग, उनको बहुत अच्छा लगता था कि दूसरे जो गुरु होते थे उनको घर पे बुलाना. There was one, I think his name was Malik. I'm not sure. Malik. I'm not sure, but he had one of his followers was an English woman. Okay. तो एक गुरु जो थे उनका नाम मलिक था, लेकिन उनकी जो शिष्य थी ना, एक शिष्य थी वो विदेशी थी. And another was the Aurobindo Ashram director, you know, the mother, that's what they believed. Right. And they all wanted me to join them. और वो अरविंदो आश्रम की जो माई है, जो ना माँ के नाम से बुलाते हैं वहाँ पे, तो वो जो उनकी डायरेक्टर थी, she came to your house, your father-in-law? The director did.
Oh wow. The director of Aurobindo Ashram. Yeah. So Aurobindo Ashram की जो director जो थी That's वो Pondicherry, isn't it? Pondicherry, yeah. So पौंडीचेरी में जो अरबिंदो आश्रम है उनकी जो डायरेक्टर थी वो भी हमारे घर पे आई थी और वो चाहती थी कि मैं भी जो हूँ वो अरबिंदो आश्रम की जो फिलोसॉफी है उनकी जो उनके साथ में जुड़ जाऊं. And he gave me a picture of the mother and said, you take this and she will help you in any way you want. तो वो जो अरबिंदो आश्रम के जो डायरेक्टर हमारे घर पे आए थे ना तो उन्होंने मुझे वो माई का एक पिक्चर दिया, एक चित्र दिया और उसको कहा कि तुम इसके साथ संबंध रखो और तुम्हें जो चीज की प्राप्ति चाहिए ना ये तुम्हें करा देगी. So I thought I'll try this. I put the picture there, but the feeling was, go away, you don't belong to me. So, जब मैंने वो चित्र सामने रखा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ उस चित्र को देखकर, वो माई के चित्र को देख के मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो मुझे ये कह रही है तू यहाँ से चली जा, तू मेरे से तेरा मेरे से कोई संबंध नहीं है. मुझे तो ऐसी फीलिंग हो रही थी. But my sister-in-law, she used to do her pujas, and one of the I think it was Santoshi Devi she used to worship. And yeah, sorry. So मेरी जो ननन थी वो संतोषी माता की पूजा करती थी. तो ये जो माता जो थी उसकी भी फोटो रखती थी, संतोषी माता की भी पूजा करती थी. And I would look at the pictures because they had the pictures of Krishna and all the other Ram, Sita, and the other deities. तो मैं वहां पे वो जो चित्र जो रखे गए थे ना, जो मंदिर में है ना, हम लोग के घर में सबके घर में मंदिर होता है, तो मंदिर में जो राम, सीता और वो जो देवी देवतियों की मूर्ति थी मैं उसे देखती रहती थी. But because I was a Christian, I'd heard lots of not good stories about Krishna. तो क्योंकि मैं क्रिश्चियन रिलीजन से हूँ ना, तो क्रिश्चियन रिलीजन में कृष्ण को उसकी बहुत आलोचना की गई है कृष्ण की. तो मैंने ऐसी कहानियां, बहुत अच्छी कहानियां कृष्ण की सुनी नहीं थी. But I would look at the pictures and I would see the faces, how beautiful they were and how full of divinity. तो जब मैं उन चित्रों को देखती थी तो मुझे ऐसा लगता था ये कितने सुंदर है, इन चित्रों के अंदर भी कितनी दिव्यता है. So I thought there must be something in the Hindu religion. There must be something because the pictures are telling me something that I like. तो मुझे ऐसा महसूस होना शुरू हो गया कि ये जो हिंदू धर्म है इसके अंदर कुछ तो होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए, क्योंकि ये चित्र मुझे जो है ना कुछ कहते हैं. मुझे ऐसे लगा कि ये इतने सुंदर, इतने दिव्य पिक्चर है तो जरूर हिंदू धर्म में कुछ तो होगा जो मुझे अच्छा लगता है, जिसे देखकर ही मुझे अच्छा लगता है. And although they did various worship, they had their puja and whatever, but I was the one that wanted to have a havan for the children because there was my daughter had been born by that time. तो वो तो जो भी पूजा वगैरह वो लोग सब करते थे वो ठीक था, लेकिन मैं खुद पर्सनली ये चाहती थी कि मैं अपने बच्चों के लिए, फिर उसके बाद मुझे एक बेटा तो था, उसके बाद बेटी भी हो गई थी, तो मैं चाहती थी कि हम हवन करें, मुझे हवन कराना था. And I was surprised no one was interested. और मुझे बहुत सरप्राइज हुआ कि किसी को हवन कराने में कोई इंटरेस्ट नहीं था. And so although everything was okay, still I felt that there was something very much missing in my life. और भले मुझे ये सब कुछ मेरे जीवन में ठीक ही चल रहा था, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा कुछ महसूस हुआ कि कुछ ना कुछ मेरे जीवन में कमी है. And then certain circumstances pushed me into feeling that I've got to find out the meaning for life, but where shall I look? तो ऐसी जीवन में परिस्थितियां आई कि मुझे फिर ये बहुत ही तीव्र भासना होती थी कि जीवन का अर्थ जानना है मुझे, और लेकिन कहाँ से मुझे इस जीवन का अर्थ मिलेगा वो नहीं पता था.
And then my father-in-law arranged for me to get a job with the Delhi Cloth Mill. They had a computer section, a computer department. So he arranged for me to get a job there. तो मेरे जो ससुर जी थे, उन्होंने क्या किया कि दिल्ली में which department? Sorry, I missed it. He arranged for me to get a job with the Delhi Cloth Mills, who had opened up a computer department. दिल्ली क्रॉस मिल करके एक कंपनी थी जिसके अंदर कंप्यूटर डिपार्टमेंट शुरू हुआ था, तो उसमें उन्होंने मेरे लिए नौकरी ढूंढी और मुझे वहां पर नौकरी पे लगाया, कंप्यूटर डिपार्टमेंट. I used to take the bus every day, and the और bus went up through Karol Bagh. तो मैं रोज बस में जाया करती थी, काम पे नौकरी पे बस में जाया करती थी, और जो बस जो थी ना वो करोल बाग से जाती थी. And when we passed, I saw that in Karol Bagh there was a board which said something World Renewal. तो मैं जब वहां से पसार हो रही थी तो वो बस में से मैंने देखा कि एक बोर्ड था जिसके ऊपर लिखा था वर्ल्ड रिन्यूअल. And every time I passed, my head was pulled towards it. I felt a pull. और जब भी मैं वहां से पसार होती थी, पास होती थी, वहां से गुजरती थी, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे कोई खींचता है वहां पे, मुझे खींच महसूस होती थी वहां. And it seemed to me that there was an ashram there. और यहाँ पर मुझे अंदर से महसूस होता है कि यहाँ पर कोई आश्रम है. And I thought of going in, but I had not heard good things about ashram. मुझे लगा कि मैंने सोचा कि मुझे जाना है आश्रम पे, लेकिन मैंने उस आश्रम के बारे में अच्छी बातें नहीं सुनी थी. And I thought it's that if I had this very strong feeling, if I go there, my whole life will change. But will it change for the better? मुझे ऐसा था कि अगर मैं वहां पर जाऊंगी तो मेरी सारी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन क्या वो जिंदगी जो मेरी बदल जाएगी वो क्या अच्छी होगी, अच्छे के लिए बदलेगी, अच्छा बदलाव आएगा, वो नहीं पता था. And then one day I felt so desperate, I've got to go in and find out. और एक दिन मेरे अंदर मेरी इतनी तीव्रता बढ़ गई कि मुझे जाना ही है और मुझे ये देखना है कि अंदर क्या हो रहा है, आश्रम में क्या है. So when I reached the gates, I saw All-Rounder Dadi sitting in the veranda. So जब मैं गेट के पास पहुंची, was it पांडव भवन Ben? It was Pandav Bhavan, yes. पांडव भवन में जब मैं अंदर पांडव भवन के जब मैं द्वार पर पहुंची तो ऑल राउंडर दादी जो है वो वरांडे के अंदर, वो जो है ना एंट्री, जैसे पांडव भवन में एंट्री करते हैं तो बहुत बड़ा एक स्पेस है, तो उस वरांडे में ऑल राउंडर दादी जो थी वो बैठी हुई थी. And the vibrations were pulling me in. I could feel myself being pulled in. और वहां उसके जो दादी के जो प्रकंपन थे, उनकी जो पवित्रता के प्रकंपन थे, वो जो वाइब्रेशन जो थे वो मुझे अपनी तरफ खींच रहे थे और मुझे महसूस हो रही थी वो खींच मुझे महसूस हो रही थी. And when Dadi All-Rounder saw me, she jumped up and called Sharda Ben, who was there at the time, to come speak to me. जैसे ही मुझे ऑलराउंडर दादी ने मुझे देखा तो वो सीधी खड़ी हो गई, और उस वक्त जो अहमदाबाद के शारदा बहन है ना वो वहां रहते थे, तो उन्होंने शारदा बहन को बुलाया और कहा कि मुझसे बातें करें. So Sharda Ben came out and in broken English started talking about something about Adam and Eve. तो शारदा बहन बाहर आए और उनकी टूटी फूटी इंग्लिश में उन्होंने आदम और ईव के बारे में बोलना शुरू किया. I didn't know what she meant. मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि वो क्या कहना चाहती है. But from her eyes, I could see that she held the secret to what I was looking for. लेकिन उनकी आंखों, उनकी बातें तो मेरे को ठीक से समझ नहीं आई, लेकिन उनकी आंखों के अंदर मुझे ये दिखाई दिया कि इनके पास वो जवाब है जो मैं ढूंढ रही हूँ. And it so happened that there was a brother, I don't know if you know him, Lal Chand Vats, who left the body some years ago. He was a lawyer. तो वहां पर एक भाई था जिनका नाम लाल चंद भाई. He was a well-known lawyer in the Yagya.
तो लालचंद भाई जो थे वो बहुत ही प्रख्यात यज्ञ में बहुत प्रख्यात लॉयर थे जो वहां पर उस वक्त थे. Yeah. And he usually used to come at night. But today, that very day I came, he came at the same time. तो मोस्टली वो जो भाई थे वो हमेशा रात को आया करते थे सेंटर पे, लेकिन उसी दिन जब मैं जिस समय पर गई थी उस समय पर वो भाई वहां पर मौजूद थे. So he was asked to explain the museum to me. तो उनको बताया गया कि आप इस बहन को म्यूजियम की सैर कराओ. And so he did. He told me everything in the first room. I felt this is just what I like. I wanted to hear. So जब उन्होंने पहले ही कमरे में लेकर गए, म्यूजियम के पहले कमरे में लेकर गए और मुझे सब जो कुछ भी समझाया, तो मुझे ये एहसास हो गया था बस मैं इसी बात को ढूंढ रही थी, मुझे यही चाहिए था. Yeah. And when he said about destruction, I felt very happy. और जब उन्होंने ये कहा कि विनाश होने वाला है तो मैं तो बहुत खुश हो गई. Because I thought that all my sorrows will finish. क्योंकि मेरे सारे दुख चले जाएंगे. And then when he was explaining, it was like I had not exactly a vision, but it was a feeling of a curtain being drawn back and I was looking into a beautiful world. जब वो मुझे समझा रहे थे ना, तो ये कोई मुझे कोई साक्षात्कार नहीं हुआ था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे आंखों के सामने से एक पर्दा हट रहा है और वो पर्दे के पीछे एक नई दुनिया है. तो मुझे वो साक्षात्कार की, जैसे साक्षात्कार होते हैं तो कैसे हमें दृश्य दिखते हैं, लेकिन वो साक्षात्कार नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ऐसे जैसे कोई पर्दा हिल रहा है और दूसरे पार जो है वो नई दुनिया है. For some reason, he explained everything except for the cycle. पता नहीं क्यों उस दिन उन्होंने मुझे सब कुछ तो समझाया, लेकिन सृष्टि चक्र के बारे में नहीं समझाया. But that cycle, that I felt there is some magic in that picture. I liked it very much. उन्होंने मुझे साइकिल के बारे में समझाया नहीं, लेकिन जब मैंने उस चित्र को देखा तो मुझे लगा कि इसके अंदर इस चित्र में कुछ जादू है और मुझे वो चित्र बहुत पसंद आया. So afterwards, I sat with the other sisters on the veranda, and Asha Ben had come back by that time. She had gone out. तो फिर ये सब म्यूजियम देखने के बाद मैं जब वरांडा में बाहर आई और मैं सब दूसरी बहनों के साथ बैठी थी, तो उसी समय जो है वो आशा बहन वापस आ चुके थे, वो कहीं बाहर गए थे और वो वापस आ चुके थे. So we had such a nice chit chat, and I felt so happy. I'm finding what I was looking for. तो फिर उन्होंने जब आशा बहन आए, फिर उनके साथ हमने बहुत अच्छी गुफ्तगू की और फिर हमें बहुत अच्छा लगा और मैं बहुत खुश हो गई कि मुझे तो बस यही चाहिए था. So when I went back home and I said I found the secrets to the universe. तो फिर मैं घर पर गई और घर पर जाने के बाद घर वालों को बोला कि मुझे तो दुनिया की सारे रहस्य का पता चल गया है. So they said, where did you go? तो उन्होंने पूछा कि रुको तुम कहाँ गई थी? So I said Brahma Kumaris, and they said, what? Don't go there. They're bad people. तो उन्होंने कहा मैं ब्रह्मा कुमारीज में गई थी. उन्होंने कहा क्या तुम ब्रह्मा कुमारी में गई थी? तुम्हें बिल्कुल वहां नहीं जाना है, वो अच्छे लोग नहीं हैं. Because a distant cousin, his wife, she had become a Brahma Kumari and had to leave her home. So they had this feeling that Brahma Kumaris were not good. तो उनके जो कजिन, बहुत दूर के जो कजिन थे ना, तो उनकी पत्नी जो थी वो ब्रह्मा कुमारीज में उस वक्त जाती थी और फिर उसने घर छोड़ दिया. तो इसलिए उनको लगा कि ये ब्रह्मा कुमारी वाले जो है ना वो अच्छे लोग नहीं हैं. So they didn't want this to happen to me. और वो नहीं चाहते थे कि ये घर छोड़ के चली जाए, इसलिए उन्होंने मना किया. But Baba had got hold of me, so I accepted everything from that day on. So बाबा ने मेरे पर जादू कर दिया था, तो मैंने उस दिन से सभी कुछ जो बाबा ने कहा ना उसको स्वीकार कर लिया था.
So my poor husband, he was very upset. मेरा बेचारा मेरा पति देव वो बहुत ही नाराज हो गए थे. Yeah. But he was a good man. बट वो अच्छा इंसान था. And although my father-in-law wanted him to divorce me, he said no, she has to look after the children. तो मेरे जो ससुर थे वो कहते थे कि तुम इससे डिवोर्स ले लो. तो उसने कहा कि नहीं, मैं इससे डिवोर्स नहीं लूंगा क्योंकि उसे बच्चों का ध्यान रखना है. Yeah. So it was like a kind of struggle went on, because I was so happy going to the center, but I had to go, I had to make excuses to go to the center. तो मुझे वहां पर ऑफ कोर्स मतलब जैसे बंधन होता है इस तरह से, जैसे कि बंधन जैसी स्थिति हो गई थी, कश्मकश होती थी और मुझे सेंटर पर जाना होता था तो भी मुझे कोई ना कोई बहाने बनाकर जाना पड़ता था. And then Asha Didi, because she and Bridge Mohan Bhai, they sort of took me under their wing, and I would meet them. तो आशा दीदी और ब्रिज मोहन भाई मेरी पालना करते थे और मैं उनके कनेक्शन में रहती थी. So she said, why don't you make your program to go to Madhuban? तो आशा दीदी ने मुझे बताया कि तुम मधुबन जाने का प्रोग्राम क्यों नहीं बनाती हो अपना. And this was in the following year in February 78. और ये बात है 1978 की फरवरी की. Because I had, when I went to Pandaban, first of all, it was the 7th day of the 7th month, 1977. So you went in on 7/7/77. Yeah, it's a magical date. Right, it's a magical date. So जब पहली बार जब मैं मधुबन गई तो मधुबन जिस दिन मैं गई वो थी 7th of July 1977. Yeah, that was in Pandav Bhavan in Delhi. Yeah. Pandav Bhavan, Delhi. Yes. Okay. So then I made my program to go to Madhuban in February 78. Okay. So 7/7/77 को उन्होंने पांडव भवन की दहलीज पर पहली बार पैर रखा और फिर फरवरी में उसके बाद के 78 फरवरी में उन्होंने मधुबन जाने का प्रोग्राम किया. And I was to go with Rajni Ben, who's in Japan, Philippines. She was there. So मैं जब गई तो रजनी बहन थे जो आज जापान के, उनका भी अनुभव तो हमने सुना है, तो वो जो थे वो उस वक्त मधुबन में थे. And it was very easy to go in those days. You just got your ticket and you went. तो उस वक्त जाने के लिए कुछ इतनी सारे फॉर्मेलिटीज नहीं होती थी, आप जस्ट मधुबन की टिकट लो और वहां पर पहुंच जाओ. So she arranged to go with, I think there were 2 or 3 other BKs who were going at that time in a taxi. तो उन्होंने 2-3 जो दूसरे बीकेस थे उनके साथ टैक्सी में जाने की अरेंजमेंट की थी. And I was, over the moon going to Madhuban for the first time. I was up there. और मेरी तो खुशी का कोई पारा ही नहीं रहा क्योंकि मैं इतनी खुश थी जैसे कि ऊपर ही मैं तो उड़ ही रही थी कि मैं मधुबन जा रही हूँ. And Rajni Ben said to me, "You've got your suitcase, haven't you?" तो रजनी बहन taxi, and she said to me, "You've got your suitcase, haven't you?" तो जब टैक्सी आई तो रजनी बहन ने पूछा मुझे कि तुम अपनी सूटकेस लाई हो, राइट? So I said, yes, thinking in my mind, why are you bothering just about a suitcase? तो मैंने बोला क्योंकि मैं अपने ख्यालों में थी, तो जब मुझे रजनी बहन ने पूछा कि तुम अपनी सूटकेस लाई हो तो मैं बोला हाँ, क्यों पूछ रहा है ये सब सूटकेस जैसी बातों की. And so we got on the train, and when we reached Abu Road, where is my suitcase? फिर मैं तो गई हम लोग जब आबू रोड पहुंच गए और फिर मैं देख रही थी, अरे मेरी सूटकेस कहाँ है.
मैं तो बिना सूटकेस के आई हूँ। So I landed down on the ground with a thump. तो मैं ऊपर से नीचे धप करके गिरी कि हाँ, क्योंकि जब मैं थी वो नशे में थी, राइट? Yeah. तो मेरा सारा नशा उड़ गया, तो ऊपर से नीचे सोडा वाटर हो गया वो नशा, और मैं रियलिटी में, सत्यता And so के when we entered the courtyard in Pandava Bhavan in Madhuban, because in those days it was very basic. तो जब हम पांडव भवन के में पहुंचे और पांडव भवन का जो आंगन है वहां पर पहुंचे, तो वो बहुत ही साधारण था ना। पांडव भवन तो उस वक्त 1978 की बात कर रहे हैं, तो बहुत साधारण हुआ करता था। And the vibrations of tapasya. So I was feeling very upset because I'd lost my suitcase. I was going against the wishes of my family. So I was feeling, very unhappy. मैं भले वहां पर थी, वहां के वाइब्रेशन अच्छे थे, लेकिन मैं सूटकेस नहीं लाई थी, मेरी सूटकेस गुम हो चुकी थी, और मैं अपने परिवार की इच्छा के बिना आई थी, तो मैं बहुत ही नाराज थी, मैं खुश नहीं थी। Anyway, so Didi arranged for, luckily I had my money, and I had at least the set of clothes I was in. So Didi arranged for me to get another sari, and Rajni Ben, they arranged for some replacement clothes. तो फिर वहां पर जब दीदी थे, तो मेरे पास पैसे तो थे, और जो कपड़े मैं पहन कर आई थी, तो फिर दीदी ने मेरे लिए वो सुविधा करा के दी, और रजनी बहन भी थे, तो उन्होंने मेरे लिए एक जोड़ी कपड़ा, माना जो साड़ी थी वगैरह जो था, वो कपड़ों की मेरे लिए सुविधाएं करके दी। So eventually then I cheered up, and the next evening we were to meet Baba. और आखिर मैं खुश हो गई, और फिर दूसरे दिन शाम को हमें बाबा को मिलना था। And they told me, if you can write to Baba all your problems, this problem, whatever problems you have, you can give a paper with problems to Baba. तो उन्होंने मुझे बताया कि आप एक कागज के ऊपर अपने जीवन के जितनी भी समस्याएं हैं, वो समस्याएं एक कागज पर लिख लो, और वो कागज जो है वो बाबा को दे देना। So that's what I did. I wrote about 10 problems. This problem, this problem, this problem, this problem. और वही मैंने किया, मैंने कागज के ऊपर अपने 10 समस्याएं लिख दी। मुझे ये समस्या है, ये समस्या है, ये समस्या है, 10 प्रॉब्लम्स जो थी वो मैंने लिख दी कागज पर। In those days, there was just Rajni Ben and me when our turn came to sit in front of Baba, and this was in the meditation hall. तो उस समय जब हमारी बारी आई, उस समय तो बाबा 101 मिलते थे ना, तो जब मेडिटेशन हॉल में जब बाबा से मिलने की हमारी बारी आई, उस वक्त मैं और रजनी बहन दोनों ही गए बाबा को मिलने। And when Baba was giving me drishti, it felt like a pole of light pushing me to the other end of the room. तो जब बाबा मुझे दृष्टि दे रहे थे, तो ऐसा लगा कि एक बहुत आकर्षक प्रकाश जो है मुझे वो अपनी तरफ खींच रहा है, और मुझे एक कमरे की दूसरी तरफ लेकर जा रहा है। And then Baba smiled, because I'd given him the paper, smiled and said, "There's no problem." और मैंने जब बाबा को अपनी समस्या का कागज दिया, तो बाबा ने मुझे कहा, तुम्हें तो कोई समस्या नहीं है, You just remember Baba. तुम सिर्फ बाबा को याद करो। Yeah. And then Baba said, "Panathaso Palya." And फिर बाबा ने कहा, पानाथासो पालिया। And somehow everything changed, and Didi noticed that the big change in me, and she said, "Now you are feeling very satisfied." और अचानक से ही सब कुछ बदल गया, और दीदी को भी ये महसूस हुआ कि मेरे में बहुत परिवर्तन आया है। और अभी फिर दीदी ने मुझे कहा, अब लगता है कि तुम अपने आप से संतुष्ट हो। And then, although I had intended to come back after 2 days, Rajani Ben said, "Why don't you stay another 2 days? Baba is coming." तो क्योंकि मुझे तो सिर्फ 2 दिन में वापस जाना था, तो रजनी बहन ने कहा कि और 2 दिन क्यों नहीं रुक जाती हो, क्योंकि 2 दिन के बाद वापस बाबा आने वाले हैं। So I stayed, and then she said another 2 days because Baba's coming. It's Bhog
Thursday. सो फिर उन्होंने कहा और 2 दिन रुक जाओ, फिर बाबा वापस आने वाले हैं, फिर भोग का दिवस है तो रुक जाओ, तो फिर मैं वापस रुक गई. And so that's what we did. But of course, I had to face the music when I got back. हाँ, वो मैंने किया तो सही, लेकिन जब मैं घर पर वापस आई तो जरूर मुझे फिर वो हमारे घर का भी संगीत सुनना है. Yeah. But the Radha, who's now in Rome, she was at that time 3 years old. Radha, your daughter? My daughter, yeah, she was 3 years old. तो And उनकी जो बेटी है, राधा है उनका नाम, वो जब उस वक्त जब वो बाबा को मिलने गए थे ना, वो सिर्फ 3 साल के थी, जो अभी रोम में है. उनकी बेटी रोम में रहती है. And I think that she brought me into Gyan, her vibrations. और मुझे ऐसा लगता है कि राधा के वाइब्रेशन ने मुझे ज्ञान में लाया. Because she, right from that age, she has given a lot of support. उस उम्र से ही उसने, उस आत्मा ने मुझे बहुत बहुत सहारा दिया है. Yeah. So then went to London in that summer. I went to Scotland to visit my parents, and both the children came with me. Arjun, who was 6, and Radha, who was 4. उस वक्त उस गर्मी के सीजन में मैं उस वक्त स्कॉटलैंड में गई अपने लौकी को मिलने. तो उस वक्त जो थे उनका बेटा अर्जुन और राधा दोनों उनके साथ गए. अर्जुन जो है वो 6 साल का था, राधा जो थी वो 4 साल की थी. And there was a brother who wanted to open a center in Edinburgh. So वहां पर एक भाई थे जिनको सेंटर खोलना था एडिनबरा में. And he had invited Sudesh Didi to come. और वो भाई ने सुदेश दीदी को निमंत्रण दिया था कि आप एडिनबरा में आए. So because my parents' house was in central Scotland, and it just so happened they had all the facilities, so that it was like 2 flats. So when Sudesh Didi came, there was enough room for her and the brother. तो मेरे जो माता पिता थे ना, उनका जो घर था ना वो सेंट्रल स्कॉटलैंड में था. तो उनका घर काफी, वहां पे सुविधाएं थी, और उनके दो घर थे, और उसके अंदर, और मतलब उसके अंदर वो घर में इतनी सुविधा थी कि दोनों, वो भाई और सुदेश दीदी, वो दोनों उस घर में हम उन्हें रख सकते थे. And so we did a tour. My brother left the car and we did a tour of the main cities in Scotland. और मेरे भाई ने जो है मुझे गाड़ी दी थी, तो हम लोगों ने टूर की, जो सारे जो मुख्य स्कॉटलैंड के जो मुख्य शहर है उसकी टूर पर गए, उसके दौरे पर गए. Yeah. So I went back to India in August after that, and after that the brother Stuart, he started the center where Maureen, Sister Maureen, who's in London now, she and Sudesh Didi, they started the center there in Edinburgh. फिर मैं अगस्त में तो मैं भारत वापस आ गई, और लेकिन वो सिस्टर मूडी जो लंदन के हैं, और वो जो ब्रदर है स्टुअर्ट, राइट? एम आई प्रोनाउंसिंग करेक्ट? या, करेक्ट. सो और स्टुअर्ट भाई जो थे वो दोनों ने एडिनबर्ग में फिर सेंटर शुरू किया. So back in Delhi, I would go to the various meetings that they had in Delhi. There were about 10 centers at that time. तो वापस मैं दिल्ली में जब वापस आई, तो मैं जो भी बाबा के घर में जो वहां पर 10 सेंटर थे, उस समय 10 सेंटर्स हैं दिल्ली में, तो उनकी जो भी मीटिंग्स होती थी वो मीटिंग्स में मैंने जाना शुरू किया. I was able to go to them, but I wasn't able to go to the Murli class in the morning. हाँ, मैं मीटिंग में जा पाती थी, लेकिन सुबह का जो मुरली क्लास था ना, तो वो उसमें मेरे लिए जाना मुश्किल होता था. And then one morning, Asha Didi said, Daddy Janki is here. This was at 5 o'clock in the morning. She said, come and meet Daddy Janki.
तो एक बार आशा दीदी ने मुझे कहा कि दादी जानकी यहाँ आए हुए हैं, तो सुबह सुबह 5 बजे यहाँ पर आओ, 5 बजे आकर दादी जानकी से मिलो। And so when I went to meet Dadi Janki, Dadi said, I've come specially for you. तो जब मैं दादी को मिलने गई तो दादी ने मुझे कहा कि मैं सिर्फ तुम्हें मिलने के लिए यहाँ आई हूँ। Because usually she went through Ahmedabad, she didn't come through Delhi. तो जब भी दादी जानकी, उस वक्त दादी जानकी लंदन में थे ना, तो वो ये कहते हैं कि उस वक्त जब दादी जानकी जाते थे, मधुबन जाते थे, तो वाया मुंबई जाते थे, दिल्ली वाया नहीं जाते थे। लेकिन उस समय वो वाया दिल्ली गए क्योंकि वो बहन से, लुजिया बहन से मिलना चाहते थे। So I thought, oh, she's just being very nice. मुझे लगा कि हाँ, वो तो बहुत लाइक ये तो बहुत अच्छा बन रहे हैं, दादी बहुत अच्छी बन रही हैं। So Dadi, of course, said, are you going to Murli class? She asked me. दादी ने मुझे पूछा कि तुम मुरली क्लास में जाती हो? So I said, no, it's not possible. Family, this problem, that problem. तो मैंने कहा कि नहीं, मेरे लिए ये मुश्किल है क्योंकि मेरे परिवार में मुझे ये समस्या है, ये समस्या है। So Dadi gave me drishti and said, no problem. और दादी ने फिर मुझे बहुत प्यार से दृष्टि दी और दादी ने कहा तुम्हारे पास कोई समस्या नहीं है। And truly, I felt so empowered. I went back and said, I'm going to class in the morning. और मुझ में पता नहीं कहाँ से इतनी शक्ति आ गई, मेरी शक्ति बढ़ गई और मैंने घर पर जाकर ये कह दिया कि बस अभी कल से मैं रोज सुबह मुरली क्लास में जाने वाली हूँ। Because there was a Mai who used to come in the morning to wash the dishes, and so she took the children to school. तो मेरे पास हमारे घर में एक बहन आते थे जो मदद करने के लिए, जो आते थे वो जो बर्तन घिसते थे। तो वो जो बर्तन घिसने के लिए जो मदद करने बहन आते थे, वो माता आती थी, वो बच्चों को स्कूल में लेकर जाती थी। And so she would make breakfast, or she would give my husband tea and whatever he wanted to eat. तो वो जो बहन थी जो वो सहयोग देती थी, हमारे घर पे रोज सहयोग देने आती थी, तो वो जो सहयोगी बहन थी वो मेरे पति को जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होती थी, चाय बना के देना, उनको नाश्ता देना, वो सब भी वो कर लेती थी। And so I would very happily meet the brothers and sisters, mostly from UK and Panda Bhavan. I was happy to see them when they come over to meet Baba in the season, and they were happy to see me. तो जब यूके से भाई बहन आते थे, जब बाबा को मिलने, बाबा मिलन के लिए सब भाई बहन आते थे, तो पांडव भवन में, पहले तो जो फॉरेनर्स आते थे सारे पांडव भवन में रुकते थे ना, तो वो जब आते थे, वो यूके से आते थे, वो मुझे देखते थे तो मुझे भी खुशी होती थी और उन्हें भी मुझे देखकर बहुत खुशी होती थी। Because I was one of the first BKs, double foreign BKs living in India at that time. उस समय मैं कुछ एक में से वो डबल फॉरेनर्स बहन थी जो बीके थी और भारत में रहती थी। Yeah. Because although there were some double foreigners who wanted to stay in India, but because of various problems that Daddy said no, they should not stay. They should. काफी वहाँ उस वक्त काफी डबल फॉरेनर्स को भारत में रहना था, लेकिन जो भारत के जो पॉलिटिकल और जो भी कंडीशंस हुआ करती थी, तो दादी को पता था कि ये लोगों को भारत में नहीं रहना चाहिए, तो वो उन्हें ये सलाह नहीं देती थी कि आप भारत में रहो। It was only then later when Golo and Denise Ben and one or two others that they were allowed to stay and live in centers. तो उसके बाद काफी समय के बाद फिर दादी ने छुट्टी दी और उसके बाद काफी समय के बाद गोलो भाई, डेनिस बहन, ये लोग सब जो है वो मधुबन में रहना उन्होंने शुरू किया। And so my husband actually, he got sick and he was in hospital a lot because he had a lot of severe problems with heart and lungs. मेरे पति जो थे ना, उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई और वो कई बार उनको हॉस्पिटल में रखा जाता था क्योंकि उनको जो है वो हार्ट की और लंग्स की बीमारियां होती थी और उसकी वजह से, वो कॉम्प्लिकेशन की वजह से वो काफी समय हॉस्पिटल में
And he रहना, was diabetic also. और उन्हें डायबिटीज भी था. And so very often I would have to go into the hospital. I take my bista, I take my bedding and all the other things and sleep with the other carers in a big hall in the hospital. तो मुझे अपनी पति की सेवा करनी पड़ती थी. अभी पति की सेवा करनी पड़ती थी तो अपना बैग बिस्तरा सब लेकर मैं बहुत बड़े, जहाँ पे वो सब जो दूसरे परिवार वाले होते थे जो वहां पर टेक केयर करते थे, उनका जो बहुत बड़ा रूम होता था, तो वहां पर अपना बैग बिस्तरा लेकर नीचे जमीन पर डालकर मैं वहां पे उनके साथ सोती थी और पति की सेवा करती थी. And so this had a good effect on the relationships with my in-laws, because they felt maybe she's not so bad after all. और ये सब जो मेरे पति की जो मैंने सेवा की, तो उसकी असर जो है वो मेरे परिवारजन के ऊपर बहुत अच्छी पड़ी, क्योंकि इवेंचुअली उनको ये पता चला कि ये लड़की जो है वो इतनी खराब नहीं है. And so he left the body in 1988. और उन्होंने 1988 में अपना शरीर छोड़ दिया. And there was a thought to come back to UK, but because I was with Bridgemohn by Asha Didi in Purity office, so I stayed on there. तो मुझे ऐसा था कि पति के जाने के बाद, पति के निधन के बाद मुझे वापस ऐसा विचार आया था कि मैं वापस यूके वापस आ जाऊं, है ना. तो लेकिन फिर क्योंकि मैं प्योरिटी मैगजीन के साथ जुड़ी हुई थी, बृजमोहन भाई, आशा बहन के साथ बहुत अंग संग बहुत अच्छी सेवा कर रही थी, तो फिर मैं वहीं रुक गई. And they gave me wonderful chances, actually. और उन्होंने मुझे बहुत अच्छे अच्छे मौके दिए. Because it was like a team, that Bridgemohn Bhai liked to take me along as the driver with Asha Didi when they met the IPs and politicians, etc. तो जो बृजमोहन भाई और आशा दीदी जो है ना, मुझे वो ड्राइवर के तौर पर ले जाते थे जब वो वीआईपीज, जब पॉलिटिशियंस को मिलने जाते थे, वीआईपीज को मिलने जाते थे, तो मैं उनकी ड्राइवर बन के जाती थी. Yes. And then there was the question, because Radha was finishing her school, and the centers in Delhi, they wanted her, because she was promising BK material, they wanted her to go in the center. But Bridgemohn Bhai said, just wait and see, Baba will give you direction. क्योंकि राधा जो है ना वो उसके जो संस्कार थे, इनकी बेटी जो राधा है उसके संस्कार जो थे ना वो बाबा की बच्ची के संस्कार थे. तो ऑफ कोर्स बहनें तो यही चाहती है कि वो समर्पित हो जाए, लेकिन बृजमोहन भाई ने कहा कि नहीं, तुम जरा रुको और देखो कि बाबा तुम्हें क्या प्रेरणाएं देते हैं. Yeah. And this is what happened, that one sister who was living in Edinburgh came over, and when I met her, it struck me, this is where Radha should go. तो उस वक्त क्या हुआ कि राधा, sorry, I miss your little bit translation in before. The sister who is living in Edinburgh. Yeah, no, I forgot to translate few sentences which you said before. So वो जो राधा जो थी ना, वो उसकी स्कूल खत्म हो चुकी थी और वो अभी उसको और इसलिए वो लोग सोच रहे थे अभी राधा का क्या करे. तो फिर उस वक्त एक एडिनबरा से पांडव भवन में एक सिस्टर जो है वो विजिट कर रही थी, वो आई थी. तो जब उस बहन को इन्होंने, लूजिया बहन ने देखा, तो फिर उसे ये विचार आया कि राधा को यहाँ जाना है, राधा को एडिनबरा जाना है. And so I took her over in 92, and eventually after a year she lived in the center in Edinburgh. So फिर मैं 1992 में मैं राधा को लेकर एडिनबरा गई और फिर एक साल के बाद वो सेंटर पर, एडिनबरा सेंटर पर रहना उसने शुरू किया. Yes. Arjun, my son, he had already gone to Scotland and was in university. अर्जुन मेरा जो बेटा था वो ऑलरेडी स्कॉटलैंड जा चुका था और वो यूनिवर्सिटी में वहां पर पढ़ता था. So when I came back, it was like I was free to spend a lot of time in Purity office with Asha Ben Bridgemohn Bhai. तो फिर जब मेरा बेटा और बेटी जो है वहां पर सेट हो गए थे, तो फिर मैं जब वापस आई
तो मेरे पास अब बहुत समय था जब मैं प्योरिटी ऑफिस के अंदर ब्रिजमोहन भाई और आशा बहन के साथ ज्यादा समय बिता सकती थी. And because of my computer experience, I was looking after all the printouts. There was an old computer that was used for the work. So क्योंकि मेरा बैकग्राउंड जो है वो कंप्यूटर से था, तो मैं प्रिंट आउट करना और वहां पर भी एक बहुत ओल्ड कंप्यूटर था, तो वो मैं यूज करती थी और वो सेवाओं में मैं अपना समय देती थी. And there, every month, the hall was turned into a post office because the post office wouldn't print all the Purity magazines that had to go out. Right. We had to sort them and arrange all for that. तो प्योरिटी पूरा जो हॉल जो होता था ना, वो पूरा पोस्ट ऑफिस बन जाता था, क्योंकि पोस्ट ऑफिस वालों के पास इतनी सुविधाएं नहीं थी, तो हमको सब कुछ काम जो था वो वहीं पे प्योरिटी के ऑफिस में ही करना पड़ता था. तो हर महीने प्योरिटी की मैगजीन हर महीने जाती थी ना, पोस्ट होती थी, तो हर महीने जब वो दिन आता था तो वो सारा जो ऑफिस था वो पोस्ट ऑफिस बन जाता था. And then we used to go and meet all the IPs, VIPs, and all the people that were being asked to go to for conferences, because that was the duty, Bridgemont Bay, to arrange for conferences to get various speakers. So उस वक्त ब्रिज बहन भाई की जो ड्यूटी थी वो वैसा था कि वो मधुबन के लिए कॉन्फ्रेंस के लिए आईपीज वीआईपीज को भेजना. तो मैं उसके अंदर भी उनको बहुत सहयोग देती जब हमें मधुबन में कॉन्फ्रेंस में आईपी वीआईपीज को भेजना होता था, उनको निमंत्रण देना, उनके लिए अरेंजमेंट करना. And so it was wonderful seeing how they prepared the stamp, how they got Rajiv Gandhi, how they got the Prime Minister. I mean, it was Baba's work, but seeing the instruments in Bridgemont Bay and Asha Didi getting that all done was wonderful. तो हाँ, ये बाबा का बहुत सुंदर कार्य चल रहा था, और राजीव गांधी को और दूसरे जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस जो है उनको मधुबन तक ले जाना, बहुत सुंदर सेवाएं होती थी, और मैं वंडर खाती थी कि कितनी सुंदर सेवाएं बाबा करा रहा है निमित आत्माओं से. And so I stayed there till 97 and then came back to Scotland. Daddy Janki asked me to come over to Edinburgh in 1997. And we packed up everything and came. So 1997 में दादी जानकी ने मुझे बुलाया और मुझे एडिनबरा में उन्होंने वापस आने के लिए कहा. Did I miss something, Ben? No, I think that's it. I'm just wondering how much time is there? Am I running over time, or what is the position? No problem, because your story is wonderful. So no problem. You were finished. No problem. Okay. So I packed up everything. I said to Dadi, when she asked me, I just have to take leave from Bridgemohan Bay because that's where my service space is in Panda Bhavan. So जब मुझे दादी ने एडिनबरा में वापस आने के लिए कहा, क्योंकि मेरा सेवा स्थान जो था ना वो ब्रिजमोहन भाई के साथ था, मैं ब्रिजमोहन भाई के निमित्त थे मेरे, तो मुझे सिर्फ उनकी अनुमति लेनी थी बस, और मुझे सिर्फ अपनी सारी पैकिंग करनी थी. But it just so happened that that time things were changing in Purity Office, that ORC was on the horizon, and the production of Purity magazine was also changing. I think Sapna Wen was getting involved in that. So वहाँ पर प्योरिटी मैगजीन की सेवाओं में भी बहुत बदलाव आ रहा था, क्योंकि ओम शांति रिट्रीट सेंटर जो है वो बन रहा था, प्रोडक्शन का काम बढ़ रहा था, और वहाँ पर जो सपना बहन है उनका भी फिर प्योरिटी मैगजीन के प्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्वमेंट बढ़ चुका था, तो वो भी काफी कुछ सेवाएं देती थी. And not only that, my health was not so good, and whatever little money that I had, that was running out. और मेरी तबीयत भी अच्छी नहीं थी, और मेरे पास जो थोड़ा बहुत पैसा था वो भी अभी खत्म हो रहा था.
because as you know, in joint families, there's lots of complications. और आपको पता है कि मैं संयुक्त कुटुंब में रहती थी, तो संयुक्त कुटुंब में रहते हैं तो काफी पेचीदे संबंध होते हैं. Yeah, and so I had no expectation, and there was nothing really to keep me in Delhi. और मेरी मेरे घर वालों से किसी से कोई अपेक्षा तो थी नहीं, तो मेरा दिल्ली में रहने का कोई मकसद ही नहीं था कि दिल्ली में ऐसा कुछ नहीं था जो मुझे रोक कर रख रहा था. Although I had tried to get an Indian passport, I did think I would stay in India. मैंने इंडियन रेसिडेंसी, इंडिया की सिटीजनशिप लेने की कोशिश की, क्योंकि इंडियन पासपोर्ट लेना माना इंडियन की सिटीजन बनना, और मैं चाहती थी कि बनूं, but whenever I tried, there was some obstacle or the other. लेकिन जब भी मैंने इंडियन सिटीजनशिप लेने की कोशिश की, तब कोई ना कोई समस्याएं आती थी. So I came back to Edinburgh, and Radha was already in the centre, and Daddy wanted the sister who was there, Christine, to move to London. तो जब मैं एडिनबरा में वापस आई, तो राधा बहन जो थी वो ऑलरेडी सेंटर पे थी, और वहां पर जो बहन रहती थी, क्रिस्टिन बहन जो रहती थी, तो दादी चाहती थी कि वो क्रिस्टिन बहन जो है वो लंदन वापस जाए. And so I got a job in Edinburgh, working in a school. मुझे एडिनबरा में नौकरी मिल गई, और मैं वहां एडिनबरा में स्कूल में काम करती थी. Because that was the system there, that most of the sisters and brothers living in centers, they had a job. तो यहाँ पे सिस्टम ही ऐसी हुआ करती थी कि जो भी भाई बहनें सेंटर पे रहते थे, उनको जॉब करनी पड़ती थी, नौकरी भी करनी पड़ती थी, तो वो लोग नौकरी करते थे और सेंटर संभालते थे. And initially I used to wear a sari to school because that's what I was used to. और पहले मैं जब स्कूल में पढ़ाने जाती थी, एडिनबरा माना स्कॉटलैंड की स्कूल में पढ़ाने जाती थी, तो भी सफेद साड़ी पहन के जाती थी, क्योंकि मुझे आदत ही थी सफेद साड़ी पहनने की. And because I understood Hindi, I got the job because it was in a department that was looking after children whose first language was not English. तो क्योंकि मैं हिंदी समझ पाती थी, तो मुझे वहां पर जॉब इसलिए मिल गई कि उस स्कूल के अंदर एक डिपार्टमेंट था जहां पर वो बच्चे आते थे जिनकी इंग्लिश जिसकी मातृभाषा नहीं है, जैसे कि हमारी मातृभाषा गुजराती है, हिंदी है, तो जिसकी मातृभाषा इंग्लिश नहीं है, वैसे बच्चों का एक डिपार्टमेंट हुआ करता था, और मेरी ड्यूटी थी उन बच्चों के साथ रहने की, उनको पढ़ाने की. Yeah. But for 1 year after coming back, it was like a culture shock. After coming back from where? After leaving India and coming back to Scotland, it was like a culture shock. तो इंडिया को छोड़कर, भारत को छोड़कर स्कॉटलैंड में आना, तो वो मेरे लिए एक सांस्कृतिक कल्चर शॉक था. कल्चर शॉक का मतलब ये होता है, जब आप इंडिया से हम किसी दूसरे देश में जाते हैं, तो उसकी संस्कृति हमारे लिए बहुत अलग महसूस होती है. उसके साथ एडजस्टमेंट करना हमारे लिए बहुत नया होता है, हमें समझ में नहीं आता है, तो उस बात को कहा जाता है कल्चर शॉक. तो उन्हें भारत में ऑलरेडी वो स्कॉटलैंड के होने के बावजूद, वो जब भारत से स्कॉटलैंड में आया है, तो वो स्कॉटलैंड उनके लिए कल्चर शॉक था. तो ये बहुत बड़ी बात है. I couldn't spend anything. I would translate into rupees, and it was so difficult to manage. तो दूसरी बात क्या होती है कि जब आप इंडिया से किसी भी विदेश में जाते हैं ना, और आप कोई भी चीज लेने जाएंगे ना, तो क्या करेंगे, अरे ये 200 रुपए की है, अरे ये 500 रुपए की है, तो वो सारा कन्वर्जन करते रहते थे. तो जब वो कन्वर्जन करते थे ना, तो उनके लिए कोई भी 1 रुपया भी खर्चा करना ना बहुत मुश्किल हुआ करता था, क्योंकि वो सारा जो है वो इंडियन रुपीस का, और वो तो बहुत, अभी जैसे इंडियन रुपीस 70 रुपीस इज इक्वल टू $1, तो वो अगर हम $10 तो 700 रुपया, तो 700 रुपया सोच के ही इंसान को 700 रुपया, तो इट्स लाइक उनके लिए बहुत मुश्किल होता था पैसा खर्चा करना. Because I remember when I first went to India, there were 1 paisa coins, 1 paisa coin, and the taxi was 3 rupees to go from Pandavavan to my house.
तो उसमें उस समय की बात कर रही हूँ जब मैं इंडिया में भारत में रहती थी, तो मैं 1 पैसा यूज करती। उस वक्त 1 पैसा चलन में था और मेरे घर से पांडव भवन जाने का रिक्शे का भाड़ा, टैक्सी का भाड़ा जो हुआ था 3 रुपया हुआ करता था। तो मैंने ये सब समय से गुजरी थी, तो मेरे लिए ये यहाँ पर आकर इतना पैसा खर्चा करना मुश्किल हो गया। But of course, you get used to anything. And when I came back to Scotland, I had to learn how to give the course. तो फिर आप अपने कोई भी चीज कहाँ पर आप रहते हो तो फिर एडजस्ट हो जाते हैं। लेकिन जब मैं एडिनबरा में आई, फिर सेंटर पे जब रहती थी, तो फिर मुझे सीखना पड़ा कि कोर्स कैसे देते हैं। Because there were a few foreigners that I was asked to explain knowledge, but I hadn't really been in the practice of doing that. तो क्या हुआ था कि वहां पर जो कुछ फॉरेनर्स आते थे सेंटर पर, क्योंकि वो अभी स्कॉटलैंड में सेंटर पर रहते थे, तो सेंटर पे जब दूसरे फॉरेनर्स आते थे तो उनको कहा जाता था कि आप उनको ज्ञान समझाओ। लेकिन मुझे ज्ञान समझाने की प्रैक्टिस नहीं थी, तो मुझे दिक्कत होती थी कि मैं कैसे समझाऊं। So bit by bit, learning and listening to classes, I picked it up. फिर धीरे धीरे मैं क्लासेस सुनती थी और सीखती गई, और फिर मैंने कोर्स देना सीख लिया। And of course, I had the opportunity to go to London and meet Daddy and get to know the rest of the BK family here. और फिर धीरे धीरे फिर मैं लंदन जाना शुरू किया, दादी को मिलना जाती थी, दूसरे जो लंदन के परिवार के थे और यूके के जो थे वो सब वहाँ के जो बीकेज हुआ करते थे, तो वो ब्राह्मण परिवार से मिलने का भी मौका मिलता था। But this was when I had to learn to do a lot of inner work. All the things that Baba was saying in the Murli that I didn't have to face in India, I was facing external things, but I had to face here when I came back to Scotland. तो फिर जब मैं स्कॉटलैंड में आई तो मुझे फिर अपने ऊपर काम करने का मौका मिला। जब मैं भारत में रहती थी तो बाहर की परिस्थितियां थी और उसके साथ में डील करती थी, उसके साथ मेरा ज्यादा उसमें वक्त जाता था। लेकिन यहाँ पर जब मैं आई तब मुझे मौका मिला कि मैं अपने अंदर जो कश्मकश है, अपने अंदर का जो पुरुषार्थ है, वो करने का मौका मुझे यहाँ पर मिला। And Scotland, there are very few BKs in Scotland. स्कॉटलैंड में बहुत कम बीकेज हैं। Yeah, population is less, but there are many challenges because people they don't like to show their feelings. यहाँ पर क्या है कि लोग अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, अपने अंदर की जो भावनाएं हैं वो बता नहीं पाते हैं, तो इसीलिए वो बता नहीं पाते हैं, तो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि किसी बात को फॉलो करना। And for a long time we had to use different words to talk about God. और वो भगवान में भी नहीं मानते थे, तो भगवान के की जो बिलीफ सिस्टम है उसमें फर्क, जब साम्यता नहीं होती है तो भगवान की जगह पर हमें दूसरे शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता था जब हम उन्हें ज्ञान सुनाते थे। And believing in rebirth, that's now people believe in rebirth, but it took a long time for people to change their attitudes. और रीबर्थ माना पुनर्जन्म की मान्यता आज लोग मानते हैं, लेकिन उस वक्त जब 90s की बात कर रहे हैं उस वक्त भी लोग पुनर्जन्म की बात को नहीं मानते थे, तो उनके लिए उन्हें बहुत वक्त लगा पुनर्जन्म की जो मान्यता है उसे मानने में। Yes, and now there's a lot of interest in yoga and in mindfulness, and now we're at the time when really we're faced with another challenge, isn't it? So अभी जो है फिर धीरे धीरे आज के दौर में तो देखो तो योगा है, माइंडफुलनेस है, इन सब बातों में तो आज लोग सब बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। समय बदलता जा रहा है और आप सभी देख रहे हैं कि अभी जो ये समय बदला है वो तो बहुत अलग है ना? आप मानते हैं ना?
Yes. And now with these Zoom programs, we're seeing people are having a more value for meditation. They wouldn't come before, but now they're coming. Now they're wanting to come. और अभी इस परिस्थिति के अंदर ये जूम प्रोग्राम्स की वजह से जो लोग पहले आना नहीं पसंद करते थे, ज्ञान सुनना नहीं पसंद करते थे, अभी उनको आना है, ज्ञान सुनना है, उनको मेडिटेशन सीखना है. Yeah. And so I think that we're now in the times when we're just preparing for the final scenes, but it seems to me that we're coming much closer. It's a paradox. Right. तो अभी हमें ऐसा लगता है कि जैसे कि हमारा ये ड्रामा का अंतिम दृश्य जो है वो बहुत करीब आ रहा है, लेकिन ये अंतिम दृश्य है कि नहीं कि वो भी समझना वो जरा paradox is what is a synonym for paradox, sister? Can you help me with right now? Paradox is anything, any synonymous word? Contradictory. हाँ. तो मतलब हाँ, so final stage पर है या नहीं है, उसके वो दोनों जो है वो अलग दिशा में जा रहे हैं. असमंजस, वैशाली बहन, जिसको असमंजस कहते हैं. असमंजसता है. Yes. Yeah. I don't know if you're feeling this, but certainly with all the wonderful things that are happening and going on in the VK world, it's really, I think this is the final, we're heading for the final revelation. तो आप पता नहीं आप लोगों को ये लगता है कि नहीं लगता है कि लेकिन ये जो बाबा के बच्चों में ब्राह्मण परिवार के अंदर जिस तरह से बदलाव आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो ऐसा लगता है कि अभी अंतिम प्रत्यक्षता का समय आ गया है. Certainly, we are feeling in UK that we have lots of meetings amongst ourselves, so we're feeling a closeness that there wasn't so much before. तो अभी क्या होया कि यूके में इस समय के दौरान हम लोग जो बहनें हैं यहाँ के जो है ब्राह्मण परिवार वाले जो है वो बहुत मिलना जुलना बहुत बढ़ चुका है, उसकी एकता बढ़ चुकी है, जो पहले ये हुआ नहीं करती थी, लेकिन अभी हमारे में एक दूसरे के अंदर बहुत करीबीपन महसूस होता है. Yeah. So maybe I'll finish there and thank you very much for this opportunity. और अभी मुझे लगता है कि मैं अभी यहीं पर वाणी को विराम देती हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया जो हमें ये मौका दिया गया. Thank you for sharing, sister. What I should say, Vaishali Ben, don't you think we should invite Radha Ben also? Vaishali Ben? Yeah. Yes. She's a good speaker. Yeah. She's become very good. So I would like Yeah. to Sister Radha. Do you understand? Lucia Ben, Lucia Ben, do you understand Hindi? Yeah, I understand, but speaking is a bit difficult. Okay. Poquito. Okay. So thank you for saying. You shared Yeah, your but very wonderfully and step by step, year by year, all story you shared open-heartedly. So thank you for that. And does Sister Judy know your story, your experience, Sister Judy? Yes, she does. She was, I don't know if she knows all the details, but she does know quite a bit. She's quite close to Radha and Rome. She's had a lot of interaction with Radha. Okay. Who does speak Hindi. Okay. so Radha Ben is in Rome? Yes. Okay. वैशाली बहन, आपको पता है लूसिया बहन से मेरा कैसे संपर्क हुआ? सिस्टर जूडी ने हैलिफैक्स में मुरली पढ़ने के लिए इनवाइट किया था जूम पे, और मैं भी कई बार जुड़ता हूँ, तो मैं वहाँ मिला और मुरली के बीच में ही आई इनवाइटेड हर and Sister Judy asked, let's finish this Murli and after that we will do that business, right? Sister Luisa. So Yes. Judy Ben Yes. So गए, जूडी बहन निमित्त बनी हमको जोड़ने के लिए, और बहुत अच्छा अनुभव. प्यारे साथियों, सब थक तो नहीं गए? 9 बज गए तो हाथ खड़ा करके अभिवादन तो करो. देखो कितना अच्छे से
सब आपने अनुभव सुनाया, सो बहुत Thank you. धन्यवाद। You're doing very good work, I think, Dinesh bhai. Thank you. It's It's very good service that you're doing. thank you. It's actually it's बाबा कहते हैं, sister Lucia sister, Baba said once that if you do not know how to relate knowledge, if you share your experience, that's the biggest service. And to create a platform for that, to share their knowledge and reach out to thousands and thousands of people, Minesh Bhai is doing great service. Do you agree? Very much so. I've seen several of the stories that you've put up. You know, that's amazing. Very good. Thank you. Yeah. So मिनेश भाई जो है उन्होंने बहुत सुंदर सेवा की है। बाबा ने कई बार मुरलियों में कहा है कि जब आप किसी को ज्ञान नहीं सुना पाते ना, कोई बात नहीं, अपना अनुभव सुनाओ, क्योंकि अनुभव की अथॉरिटी जो है वो सबसे बड़ी सेवा है। और इतनी अनुभव की अथॉरिटी को, बाबा के इतनी अनुभव की अथॉरिटी को अथक बनकर उनसे सेवा का भाग्य प्राप्त कराना, तो ये बहुत अपने आप में बहुत बड़ा भाग्य है मिनेश भाई का। तो बहुत बड़ा भाग्य जो है मिनेश भाई ने सबको दिया है। तो मिनेश भाई का भी हमें बहुत 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 शुक्रिया करना चाहिए। बहुत दुआएं कमाई हैं इस 6 महीनों में, बहुत लोगों को आपस में जोड़ा है। You know, Minesh bhai, you know, Sister Lucia, what I feel, Minesh bhai made world BKs and Brahmin souls more closer by this experiment. Don't you agree with me? I do, very much so, because everyone is interested to hear. Yeah, definitely. Oh, my sweet sister. And thanks to you for translating so nicely. Instrument, okay? I'm just an instrument. I'm doing it nothing. Baba is doing everything, is backbone, okay? And Dr. Jayan Bhai asked me to do this service. So Avek Bab Dada directed him. Once Dr. Jayan Bhai asked Avek Bab Dada, Baba, what I should do for intense effort? And Baba directed him, yes, you should share your experience and listen to the great experiences of other souls. And this is the seed of this program. So this is the direction of actually Avek Baba's direction, right? So I am doing is nothing, Vaishali Ben. मुझे कहाँ पहुँचा रहे हो? ओके, डॉक्टर जयंत भाई इज विथ अस। डॉक्टर साहब आप भी अपनी बात रखें, फिर सभा को पूरा करेंगे। डॉक्टर साहब। और वैशाली बेन, आपको तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी एक भाई आया था, उसने बोला किरीट भाई ने मेरे को कोर्स कराया, और उसने बोला 84 जन्म में से एक जन्म की मदर तो मेरी बड़ौदा की होंगी। सुना? So she because याद है ना? भाई ने हर्ष बोला बड़ौदा की मेरी मदर होंगी, एक 84 मदर में एक होंगी। ये पल हम बरसों याद करेंगे, ये मौसम चले गए तो हम फरियाद करेंगे। ये लम्हे, ये पल हम बरसों याद करेंगे, ये मौसम चले गए तो हम फरियाद करेंगे।